گرتے ہی شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بھر چلے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک آج ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کے پروونشل مینجمنٹ سروسز میں کامیابی حاصل کی، اور ان کا یہ سفر اور ان کی یہ کامیابی جو ہے اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے انہی کی زبانی۔ تو میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی محمد نذیر کو۔ سر کائنڈلی انٹروڈیوس یور سیلف۔ جی، میرا نام محمد نذیر ہے اور میں گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ گانچھے سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں نے اپنا جو ہے پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے ولیج سے ہی ایکوائر کیا تھا، اینڈ آفٹر دیٹ آئی موو ٹو کیڈٹ کالج اسکردو، فرام ویئر آئی ڈڈ مائی ایف ایس سی ان پری انجینئرنگ. Afterwards, I did my BSc in mechanical engineering from GIK, and afterwards I worked in a few private firms, and اس کے بعد میں نے civil services کی جرنی اسٹارٹ کی، and alhamdulillah now I have been able to clear GB competitive examination. ماشاء اللہ، کانگریچولیشنس۔ تو سر یہ انجینئرنگ سے پی ایم ایس اور کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کی طرف کیسے آپ کا رجحان ہوا؟ یہ آفٹر مائی گریجویشن آئی وینٹ تھرو اے پروسیس آف ریٹروسپیکشن، کیونکہ جو ہے انجینئرنگ کا جو سیکٹر ہے پاکستان میں از گوئنگ تھرو دیر آر لاٹ آف چیلنجز فار انجینئرنگ گریجویٹس آؤٹ دیئر، اور جو ہے 2-3 سال مجھے لگے اس چیز کو ریئلائز کرنے میں کہ دیر آر ہارڈشپس ان دا انجینئرنگ سیکٹر. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ، جو ریلیٹیو میرٹوکریسی ہے جو سول سروسز میں ایز کمپیئر ٹو ادر سیکٹرس جو ہے، اس نے مجھے انسپائر کیا کہ اس کے اندر میرٹوکریسی ہے. اف یو ورک ہارڈ، اف یو ورک اسمارٹ، دین یو کین ڈو اٹ. سو گریجولی میں اس کی طرف موٹیویٹ ہوا. رائٹ. تو سر کیونکہ پروونشل مینجمنٹ سروسز ہے تو آپ جی بی میں پرائمریلی سرو کر رہے ہوں گے، تو آپ کی فیملی بھی گلگت بیسڈ ہے، ان کا ریئیکشن کیا تھا جب آپ کا رزلٹ آیا؟ مائی فیملی واز اوور دا مون، اینڈ میں نے سب سے پہلے اپنے فیملی کو ہی کال کی، اور ان کا جو ہے ریئیکشن جو ہے اٹ واز ورتھ نوٹیبل. اور اسپیشلی جو میری سسٹرز تھیں، جو میرے جو فیمیل فیملی ممبرس تھے، وہ obviously they cried in جو ہے نا happiness, اور it was an overwhelming feeling for me and the whole family as well. تو اس سے جب ریٹن کا پہلے رزلٹ آ جاتا ہے اینڈ انٹرویو کا بعد میں آتا ہے، اس فیز کے دوران جب ریٹن کلیئر ہو جاتا ہے، آپ ہاف پہ یو آر دیئر، تو انٹرویو کا ایک پروسیس رہتا ہے، پھر انڈکشن کی بھی ہوتی ہے، تو اس فیز میں کتنا آپ ہاؤ شیور یو ور؟ I was quite sure because my written had gone quite well, but still جو ہے I thought that there would be a lot of competition out there. So I had moved for the preparation of interview to Islamabad from all the way from Skardu, and I joined academy. I also gave mock interviews, especially I would like to mention the my last mock interview at CSPs academy. It was really helpful. So I did not take the interview process lightly, but I took it very serious, and alhamdulillah I was able to crack it. It is very important کہ آپ جو ہے نا انٹرویو میں کمپلیسنٹ نہ ہو جائیں کہ ریٹن کے بعد، سنس کمپٹیشن پھر بھی اتنا ہی ہائی رہتا ہے. Competition is very high, yeah. I must say that. سر، تو آپ کی یہ جو جرنی رہی، اس میں آپ کی سپورٹنگ فیکٹرز کیا رہے؟ کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھا؟ پلیز کائنڈلی اپنی اٹیمپٹس کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور پھر پرٹیکولرلی جو ابھی آپ کی کامیابی تھی اس دوران میں آخر ٹائم تک آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ کیسے رکھا؟ جی، سول سروس کی جو جرنی ہے فار موسٹ آف دا کینڈیڈیٹس جو ہے اکثر جو ہے وہ پرولونگ ہو جاتی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اور فرسٹریشن اور اپس اینڈ ڈاؤنس کا جو ہے وہ ایک فیز آ جاتا ہے. تو اس میں آئی ووڈ لائک ٹو پن پوائنٹ دا فیکٹر جس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ فل کیا، کہ آئی ڈیولپڈ اے اسٹرانگ فیتھ ان گاڈ آلمائٹی. میں نے جو اپنا ایمان ہے، اپنا جو فیتھ ہے گاڈ میں بہت زیادہ رکھا. دیٹ گیو می اے لاٹ آف اسٹرینتھ, and based on that strength I derived a lot of self confidence, because there would be phases where people would be doubting you, your abilities, you as a person, and then at that moment you have to believe in yourself when the world is not believing in you. So at that time I just believed very hardly in God Almighty, very strongly in God Almighty, and based on that belief I derived a lot of self confidence. And although there was a lot of ups and downs, but that was the strongest motivating factor. Apart from that, yes, my family jo hai, that supported me a lot, my nuclear family and my extended family, and I also would like to mention my friends
who really supported me, and I feel rich to have such kind of friends जिन्होंने मेरी इस पूरे जर्नी में जो है मुझे हेल्प किया. And as far as my attempts are concerned, yes, I appeared in GB competitive in the previous GB competitive as well, and I also attempted in CS. I also attempted CSS 2019, but those preparation phases were not. I was not really prepared for those phases. There were a lot of societal pressures. I was going through some turmoil periods, but this was my first genuine attempt. इसमें मैंने genuine तैयारी की थी. Although that preparation period in this exam was also short for me. जो मेरी targeted study थी वो 2.5 से 3 महीने की थी. I think my strategy was very good, so it worked for me. तो एज़ कम्पेयर टू मैनी कैंडिडेट्स जिन्होंने 2-3 साल या 5 साल मुसलसल तैयारी की थी, एज़ कम्पेयर टू दैट मेरे पास 2.5 से 3 महीने से ज़्यादा टारगेटेड स्टडी मेरी नहीं हुई. बट आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन कि स्ट्रेटजी इज़ द की, and I would like to elaborate about the strategy a little bit if you मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था कि आपने बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी. तो रिटन पार्ट के लिए स्पेशली जो जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा होता है तो 2-3 मंथ्स में अगर आपने तैयारी कंप्लीट ना कर ली हो तो एक बहुत बड़ा बर्डन फील होता है कैंडिडेट्स को. इस टाइम पे आपने कहा कि इतने टाइम पीरियड में मैं उसको कंसोलिडेट कर पाया अपनी तैयारी को, तो मुझे काइंडली आप उसके इस बारे में बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई और किस तरह से उसको अचीव किया. स्ट्रेटजी में सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात होती है वो ये होती है कि आपका जो है सिलेबस इन लाइन विद द सिलेबस रहना और पास्ट पेपर्स का जो है एनालिसिस करना. तो सिलेबस और पास्ट पेपर्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं दे हैव डीप स्टडी, दे स्टडी टू मच, but they do not understand the requirement of the FPSC. FPSC has a certain requirement. The examiner has a certain requirement out of your जो पेपर वो बना रहा है. तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आप ये सीखें सबसे पहले एज अ स्किल कि हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज़ द 50% सोल्यूशन. So without understanding the question, if you write and if you go on writing, there is no sense out of it, and the examiner doesn't give you marks. So that is the first and foremost thing: understanding the syllabus, understanding the past papers, and understanding the requirement of the examiner. Second thing is analytical thinking, which is very much lacking out there. So analytical thinking के लिए you have to look at the contemporary affairs. You have to look at the current. You have to have the habit of brainstorming. एनालिटिकल थिंकिंग जो है आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की हैबिट से आती है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर आई थिंक की थी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो है एबिलिटी जो है. सो एनालिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नहीं होता है. और उसके बाद जो राइटिंग की एक्सप्रेशन है, इफ़ योर राइटिंग एक्सप्रेशन इज़ गुड, इट्स गुड. इफ़ यू डोंट हैव योर राइटिंग एक्सप्रेशन, वर्क ऑन दैट फर्स्ट. सो दीज आर दी थिंग्स जिनके ऊपर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन से पहले ये चीज़ें देखनी है. दीज आर दी प्री रिक्विजिट्स. तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये दिस सेट आउट द डायरेक्शन फॉर यू. अगर आपकी ये चीज़ें हैं तो फिर योर जर्नी कुड बी वेरी शॉर्ट एंड यू कुड अचीव सक्सेस with the right strategy. So that's why I am saying कि strategy is very important. Right. So how much time did you allocated for the written practice of the questions, and did you give any mocks? I didn't give any mocks, but even my friends later realized that this guy writes too much. Even I used to have a very diverse kind of study. Another point in the strategy is that you should have a diverse kind of study. कि आप एक ही बुक को, एक ही रेफरेंस बुक से आप ले रहे हैं, सारा मटेरियल उसी से ले रहे हैं, और आप दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. आई यूज्ड द इंटरनेट वेरी मच. जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको मैंने कंसल्ट किया, आर्टिकल्स को कंसल्ट किया, बुक्स को कंसल्ट किया. जो रेलिवेंट मटेरियल होता था उसको स्ट्रक्चर मेरा अपना होता था ऑलवेज. जो है कि पेपर मैं एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता था, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता, एंड आई यूज्ड टू हैव माय ओन स्ट्रक्चर इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर. और उस स्ट्रक्चर के अंदर आई वुड हैव डाइवर्स मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आई थिंक. जो है कि उसको अब ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाता था और जो मैं वो करता था, आई यूज्ड टू राइट ऑल ऑफ दैट. तो आई डिडंट हैव टू गिव एनी मॉक एग्जाम्स in order to have good writing practice, because whatever I was
studying, I was having that, I was putting that in a proper structure, and I was writing that. So I have a lot of stuff even with me right now, जो है जिसको मैंने practice किया हुआ था, बहुत ज़्यादा practice की हुई थी. तो that is very very important. तो इसके अलावा आपने कोई नोट्स मेकिंग भी की थी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आपके बैक टू बैक पेपर्स होते हैं, यू रियली नीड टू गिव इट अ क्विक रिविजन. तो इतने ज़्यादा आपने अगर लिखा हो, एक्सटेंसिव चीज़ें लिखी हों, तो फिर उसको रिवाइज कैसे आपने किया? No, इसमें आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि माई जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, दैट वाज रियली माई नोट्स, ऑल ऑफ द, मैंने उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर मीन्स एवरी टॉपिक इज जस्ट लाइक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है ऑलरेडी, कि एक टॉपिक मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो आई वुड लाइक टू जस्ट गिव दैट टॉपिक अ स्ट्रक्चर ऑफ अ आंसर, के क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर में मैं दूंगा कि ये एफपीएससी की रिक्वायरमेंट या एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है. उसी स्ट्रक्चर में मेरा एक कंप्रीहेंसिव नोट होता था. इट डिडंट मीन कि बहुत डिटेल्ड आउट नोट होता था, कंप्रीहेंसिव नोट टू द पॉइंट एंड बेस्ड इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर. तो हर जो टॉपिक के ऊपर एक नोट ही बनता जाता था. तो सारे मेरे नोट्स ही हैं मतलब बेसिकली. तो वो एक तरह से आप मॉक इंटरव्यू भी मॉक पेपर भी हो रहा है मेरा, एक तरह से मेरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो अटेम्प्ट करने का वो भी डेवलप हो रहा है, और जो नोट्स भी तैयार हो रहे हैं जिनको मैंने एंड पे जो है ना रिवाइज किया. तो दैट वाज अ रियली गुड स्ट्रेटजी. ग्रेट. सो इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, उनको आपने कैसे डिसाइड किया, किस बेसिस पे डिसाइड किया, और कितना इंपॉर्टेंट है ये कि आप एक बैलेंस रखें कंपलसरी सब्जेक्ट्स में और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में? बिकॉज मोस्टली हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट्स कोशिश करते हैं, दे एम फॉर दी हायर स्कोर इन दी ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड कंपलसरी पे बस वो कहते हैं कि पास अगर हो जाए तो बड़ी बात है. ऑप्शनल्स, आई थिंक ऑप्शनल्स एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है ऑब्वियसली. जितने भी CSS हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो ऑप्शनल्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की रोल. इसमें डिसाइडिंग फैक्टर मेरे लिए ये था कि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था. तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से मैंने फिज़िक्स, चूँकि आई यूज़ टू हैव वेरी इंटरेस्ट इन फिज़िक्स इन माई कॉलेज एज. तो फिज़िक्स, चूँकि मैंने इंजीनियरिंग भी पढ़ी हुई थी, तो फिज़िक्स वॉज जो है वो इन लाइन विथ माई बैकग्राउंड, and I thought that I would be able to have good score in physics because it is in line with my जो है वो बैकग्राउंड जो है वो सब्जेक्ट जो है. और इसके साथ जो एनवायरमेंटल साइंस मैंने रखा था वो भी इसीलिए रखा था क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था. तो जो है इसमें मैं ऑप्शनल्स के हवाले से यही कहूँगा कि आपकी जो आप अपने बैकग्राउंड को ज़रूर कंसिडर करें. और दूसरी चीज़ जो है, आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में डेवलप होता है नहीं होता. स्कोरिंग ट्रेंड को आप ज़रूर देखें, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड से पहले ये चीज़ आती है कि अगर आपके बैकग्राउंड से इन लाइन आ रहा है तो इट्स वेरी वेरी गुड कि आपने, क्योंकि आपने 5 साल 6 साल 7 साल कोई चीज़ पढ़ी हुई है, तो आप उसको पॉलिश करेंगे, इट विल गिव यू गुड मार्क्स. तो ये फैक्टर्स थे. एक तो मेरा बैकग्राउंड का, दूसरा ये है कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर, और फिर थर्ड पे आप स्कोरिंग ट्रेंड ज़रूर देखें. ये फैक्टर्स आई थिंक जो है वो ये फैक्टर्स देखने चाहिए मतलब ऑप्शनल्स को ऑप्ट करने में. इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ड्यूरिंग जो इंटरव्यू जो आपका रहा उसमें, उसके दौरान भी ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें, उसका कितना प्रेशर था? इंटरव्यू का प्रेशर बहुत था, लेकिन ये है कि मुझे बहुत सुनने को मिला कि इंटरव्यू जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है. बट इसमें अगेन स्ट्रेटेजी है कि इंटरव्यू इज़ आई थिंक फेयरली प्रेडिक्टेबल, कि आपके बहुत सारे ऐसे पेट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पता होता है कि आपसे पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस. तो आई हैड एज्यूम्ड कि सर्टन क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जाएंगे, एंड वहाँ पे मैंने यूनिक आंसर्स प्रिपेयर किए थे, और इस तरह से प्रिपेयर किए थे कि मैंने यहाँ पे हुक करना है इंटरव्यूवर को. तो एक जो है वो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस, ये सवाल सबसे पूछा जाता था. तो एवरीवन वुड से कि आई वुड लाइक टू सर्व एंड लाइक दैट तो आई हैड फ्रेंड्स हु वर ऑलरेडी सर्विंग इन दैट कैडर. वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज Deputy Commissioner of of Nagar, I think right now. His name is Waqas Johar. I didn't take his name in the interview, but I'm taking right now here. तो उनसे मैंने पूछा था कि आपने क्या क्या steps लिए हैं as an assistant commissioner, क्योंकि वो different काम कर रहे थे. He was establishing markets for women empowerment in Shigar district. वो climate change के ऊपर awareness दे रहे थे, winter tourism को promote कर रहे थे. तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे. तो मैंने फिर उनसे ये चीज़ें पूछी, और फिर मैंने उनको आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने कहा कि मेरे जो हैं वो इस तरह से कुली काम कर रहे हैं. तो he has introduced a very different style of governance,
एंड आई एम इंस्पायर्ड विद दैट एंड आई वांट टू डू थिंग्स लाइक दैट. तो वहाँ पे मैंने हुक किया और फिर क्लाइमेट चेंज की बात हो गई. तो फिर क्लाइमेट चेंज के बाद वो सारा क्लाइमेट चेंज की तरफ डिस्कशन आ गया. एनवायरमेंटल साइंस जो कि मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने ये चीज़ एक तरह से प्लान की थी कि मैं यहाँ पे जो है इंटरव्यूअर को हुक कर सकता हूँ, और आई वाज सक्सेसफुल इन दैट. सो आई थिंक अगेन यहाँ पे इंटरव्यू में भी प्रेडिक्टेबिलिटी होती है. इफ़ यू थोड़ा सा आप ब्रेनस्टॉर्म करें, पैट्स क्वेश्चन आप उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करें, तो इसमें भी ये स्ट्रेटेजी होती है बेसिकली. दैट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि मैं दिल में सोच रहा था कि मैंने यही चीज़ एज्यूम की थी और यहीं पे हुक हो रहा है. बिल्कुल, इट्स ग्रेट कि वो जो है उधर ही पे ऑफ कर जाए आपको जी, ऐसी जी. कोई चीज़. अच्छा, इसके अलावा जो आपकी अभी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, काइंडली उसके बारे में भी थोड़ी सी बताइएगा, बिकॉज आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान का जो PMS है उनमें जी. डिवीज़न की जाती है सीट्स की, तो वो कैसे थी सीट्स की डिवीज़न, एंड उसके बाद अभी जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी वो? इसमें असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर और तहसीलदार की पोस्टें थी. तो यूजुअली हमारे यहाँ पे यही होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो टॉप हायरार्की पे होता है और उसको बहुत ज़्यादा यानी कि लोग प्रेफर करते हैं. बट मैंने भी असिस्टेंट कमिश्नर को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में इसलिए रखा हुआ था कि उसकी एक हवा बनी हुई थी. मेरी फैमिली वांटेड, एवरीबॉडी वांटेड, बट एक्चुअली मैं खुद एसओ की जॉब को प्रेफर कर रहा था. इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरा एसओ में हुआ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव माई फैमिली मेम्बर्स में से भी मेरे सिविल सर्विस में सर्व कर रहे हैं, तो मैं पूरे स्ट्रक्चर को जानता था पहले से कि हाउ द ब्यूरोक्रेसी एंड स्ट्रक्चर वर्क्स. तो बेसिकली इसके अंदर हमारा जो टोपोग्राफी और लैंडस्केप जो है वो कुछ ऐसा है गिलगित बल्तिस्तान का कि एज एन असिस्टेंट कमिश्नर यू हैव टू सर्व इन फार फ्लंग एरियाज, यू हैव पोस्टिंग्स जो है वो आपकी टफ होती हैं वगैरह. और एज अ सेक्शन ऑफिसर यू हैव टू यू आर पोस्टिंग इज इन गिलगित सिटी एंड देयर इज़ अ सर्टन स्टेबिलिटी एज फार एज फैमिली लाइफ इज़ कंसर्नड, एज फार एज प्रोफेशनल लाइफ इज़ कंसर्नड. एक सर्टन स्टेबिलिटी होती है सेक्शन ऑफिसर की जो है. तो इसके में इसलिए जो है वो ये जो एसओ जो है वो पर्सनली मैं उसको यानी कि प्रेफर कर रहा था. तो दैट्स ऑल. तो आप बिल्कुल ठीक आ गए. ऑलमोस्ट ऑल ही जॉब्स जो हैं वो थोड़ी सी डिमांडिंग होती हैं, जी. टफ होती हैं, जी. लेकिन आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो आपकी अलाइन करनी चाहिए आपकी जो इट्स डिज़ायर्स. ऑल अबाउट एप्टीट्यूड ना, कि एप्टीट्यूड है कि आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू हैव सर्टेन स्टेबिलिटी. सो इस हवाले से माई एप्टीट्यूड वाज सूटेबल टू दिस पोस्ट. बिल्कुल. तो बहुत बहुत मुबारक हो एक दफ़ा वंस अगैन टू यू एंड योर फैमिली, एंड इट्स ग्रेट सिटिंग विद यू टुडे. और आपके ख्वाब जो है वो पूरे हुए. आई होप जो लोग हमें देख रहे होंगे आगे जाके और इंस्पायर होंगे इस चीज़ से, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ख़ास तौर पे, और उसके अलावा जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस साल बैठेंगे और वैसे भी तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो होगी. थैंक यू सो मच.